ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری آج مہندی کی رات تھی۔ ساری سہیلیاں اکٹھی ہو کر گیت گا رہی تھیں۔ سارے رشتے دار موجود تھے اور بار بار مجھے میری ماں کا پوچھ رہے تھے، جو جانے اس وقت کہاں تھی۔ مہمان میرے پاس رسم کرنے آتے تو پوچھتے کہ تمہاری ماں کہاں ہے۔ میں جواباً ابا کی طرف دیکھنے لگتی، جنہیں خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ آخر ابا نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، اصل میں اس کی ماں کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی تو وہ ڈاکٹر کے پاس دوا لینے گئی ہے۔ سب رشتے دار جو پہلے اماں کی غیر موجودگی کو لے کر چیمگوئیاں کر رہے تھے، یہ بات سننے کے بعد سب کی زبانیں بند ہو گئی تھیں، مگر کچھ کے چہرے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ انہیں ابا کے اس بہانے پر بالکل یقین نہیں آیا۔ تھوڑی دیر میں لڑکے والے آ جاتے۔ میں نے پریشان ہو کر ابا سے پوچھا، اماں کہاں ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر میں میرے سسرال والے آ جائیں گے، وہ بھی اماں کا پوچھیں گے، آخر اماں کہاں گئی ہیں؟ ابا بیچارے بھی ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، مسلسل اماں کو فون کر رہے تھے، مگر اماں کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ میری اماں ہمیشہ یوں ہی کرتی تھی، ہر اہم موقع پر وہ کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ جانے کہاں تھی۔ انہیں اچھے سے معلوم تھا کہ مہندی میں آنے والے سب مہمان ان کا پوچھیں گے، مگر پھر سے وہ حسب معمول غائب تھیں اور مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میری بہن میرے پاس رسم کرنے آئی تو میں نے پوچھا، اماں نے تمہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی، آپا میں نے مہندی کی تقریب شروع ہونے سے پہلے اماں کو کالی چادر اوڑھ کر کہیں جاتے دیکھا تھا۔ میں نے اماں کو آواز دے کر پوچھا بھی تھا کہ کہاں جا رہی ہیں، مگر اماں نے ایک نہ سنی اور چوری چوری چلی گئیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اماں کو کم سے کم آج یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے سسرال والے بہت توہم پرست اور اکڑو قسم کے لوگ تھے۔ اگر وہ اماں کو نہ پاتے تو جانے کتنی باتیں کرتے۔ میں دعائیں کرنے لگی کہ کاش اماں جلدی سے آ جائیں، میرے سسرال والوں سے پہلے آ جائیں، ورنہ میری خیر نہیں تھی۔ میں بار بار دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میری چھوٹی بہن آ کر کہنے لگی، باجی امی آ گئی ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، مگر میرے سامنے سے تو وہ نہیں گزری، میں دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن کہنے لگی، اماں پچھلے دروازے سے آئی ہیں۔ آپا مجھے تو اماں کی حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی ہیں، پتہ نہیں چادر میں کیا چھپا کر لائی ہیں۔ آتے ہی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے دستک دی تو اماں نے دروازہ ہی نہ کھولا۔ میں یہ سب سن کر چونک گئی۔ واقعی یہ تو عجیب بات تھی کہ وہ پچھلے دروازے سے آئی تھیں۔ تھوڑی دیر میں اماں باہر آ گئیں اور ہنس ہنس کر سب مہمانوں سے ملنے لگیں۔ تھوڑی دیر میں سسرال سے سب مہمان بھی آ گئے۔ میری اماں نے مسکرا کر سب کا استقبال کیا اور رسمیں شروع ہو گئیں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، انہیں تو اداس ہونا چاہیے تھا کہ ابھی کچھ دیر میں ان کی بیٹی کا نکاح ہونے والا ہے، لیکن مجھے وہ بے چین اور کچھ سوچ میں لگیں۔ ہمارے ہاں مہندی پر ہی نکاح ہو جاتا ہے، اس لیے میرا نکاح بھی ابھی ہونا تھا۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے اماں نے مجھے بلایا۔ میں ان کے ساتھ کمرے میں گئی تو کہنے لگیں، جب کھانا لگے تو کہنا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں گی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، مجھے ان کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ میں نے کہا، اماں تم اچھے سے جانتی ہو کہ میرے سسرال والے کتنے روایت پسند اور قدیم خیالات رکھنے والے ہیں، سو باتیں بنائیں گے، آخر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے کیا ہوگا؟ اماں پرسرار لہجے میں کہنے لگی، بہت کچھ ہو جائے گا، مگر میں ابھی تمہیں یہ سب نہیں سمجھا سکتی۔ تمہیں ابھی بس وہی کرنا ہے جو میں نے کہا ہے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں خود تمہارے ساس سسر کو کہہ دوں گی۔ میں ڈر گئی اور کہا، میں کرتی ہوں کچھ، اماں تم کچھ مت کرنا۔ پتہ نہیں اماں کے ذہن میں کیا چل رہا تھا جو وہ اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کرتی پھر رہی تھیں۔ میں نے نکاح کے بعد اپنے شوہر سے یہ بات کہی کہ وہ میرے ساتھ کمرے میں چل کر کھانا کھائیں، تو وہ بھی بہت حیران ہوئے۔ میرے سسرال والوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، مگر اس وقت میرے پاس اماں کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے کمرے میں جاتے جاتے کچن میں دیکھا تو میں دنگ رہ گئی۔ مجھے ایسے لگا اماں ہمارے کھانے میں کچھ ملا رہی ہیں، مگر پھر میں نے سوچا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ذائقے میں تو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر اور میرے سسرال والے واپس چلے گئے۔ صبح میری بارات آتی اور میری رخصتی ہو جاتی۔ یہ شادی میری اور میر کی پسند سے ہو رہی تھی۔ اس شادی پر کوئی بھی راضی نہیں تھا، نہ ہی اس کے گھر والے اور نہ میرے گھر والے۔ وجہ ہمارا سوشل سٹیٹس تھا۔ ہم لوگ مڈل کلاس تھے اور میر ایک اونچے اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے والد کا بازار میں جنرل سٹور تھا اور ہم 3 بہنیں تھیں۔ بھائی کوئی نہیں تھا، مگر میرے باپ نے ہمیشہ ہم بہنوں کو اپنا بیٹا سمجھا اور کہا تھا، اور اپنی حیثیت کے مطابق ہماری پرورش بہت اچھے سے کی تھی۔ میں سب سے بڑی تھی اور یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر پڑھنے گئی تھی۔ میرے بابا کا خواب تھا کہ ہم پڑھ لکھ کر کسی اچھے عہدے پر فائز ہو جائیں۔ چونکہ ابا اور امی پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔
मैंने यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर दाखिला लिया तो मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे बाप को हुई थी। अब्बा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। मैं वहाँ गई तो वहाँ का माहौल देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैं तो एक सीधी सादी सी लड़की थी और यहाँ की दुनिया बहुत मुख्तलिफ थी। पहले ही दिन मेरी मुलाकात मीर से हो गई। वो मुझसे एक क्लास सीनियर था और उसी के ग्रुप वाले पहले दिन सारे नए आने वाले स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे थे। मीर और उसके दोस्तों ने मुझे भी बेवकूफ़ बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया, जहाँ मैं रोते रोते बेहोश हो गई थी। फिर इन लोगों को प्रिंसिपल से बहुत डांट पड़ी और इन सब लोगों ने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। उस दिन के बाद से मीर मेरे आगे पीछे फिरने लगा था। उसे मेरी सादगी और मासूमियत बहुत अच्छी लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो भी मुझे अच्छा लगने लगा, यहाँ तक कि हमने फैसला कर लिया कि हम तालीम ख़त्म होते ही शादी कर लेंगे। मैं इतना तो जानती थी कि मीर के घर वाले मुश्किल से मानेंगे, क्योंकि उसके अब्बा ने अपनी भतीजी उसके लिए पसंद कर रखी थी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मैं जब घर में बात करूँगी तो तूफ़ान मच जाएगा। मेरे अब्बा को शदीद एतराज़ हुआ और उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। अब्बा का कहना था कि हमारे और उनके स्टेटस और माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये शादी किसी तोड़ नहीं हो सकती। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अब्बा ऐसे कह सकते हैं। मैंने अब्बा को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया था और मेरी खुशी के लिए बिलाखिर वो मान गए थे, वरना दिल से वो राज़ी नहीं थे। मेरे अब्बा मान गए थे। उनकी सबसे बड़ी वजह मेरी माँ की मेरी हमायत में बोलना था। अम्मा ने ही असल में अब्बा को राज़ी किया था, लेकिन मीर के घर वाले नहीं मान रहे थे। हमारी तालीम मुकम्मल हो गई। 1 साल गुजर गया, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। अब्बा चाहते थे कि या तो वो मेरा रिश्ता लेकर आए या मैं कहीं और रिश्ते के लिए हाँ कर दूँ। इस बेचारे ने बहुत कोशिश की, लेकिन इसके अब्बा बहुत सख्त थे। इतने अमीर होने के बावजूद वो खासी दकियानूसी सोच रखते थे। इसने मुझे कहा भी कि मैं अपने घर वालों के बगैर तुम्हें ब्याह कर ले जाता हूँ, मगर मेरे बाबा नहीं माने कि अकेले लड़के को वो अपनी बेटी हरगिज़ नहीं देंगे। इनका कहना था कि मीर के वालिदैन पूरी इज्जत के साथ आकर रिश्ता मांगेंगे तो वो मुझे ब्याहेंगे, वरना नहीं। हम दोनों बहुत परेशान थे कि क्या करें कि एक दिन अम्मा ने एक फक्की नुमा पाउडर देकर कहा कि तुम ये मीर को दे दो, उसे कहना इसे अपने वालिदैन के खाने में मिलाता रहे, कुछ ही दिनों में वो मान जाएंगे। इनकी बात का ना मुझे यकीन था और ना ही मीर को, लेकिन फिर भी उसने ऐसा ही किया। 1 हफ्ते बाद ही उसके माँ बाप मान गए और हमारे घर रिश्ता लेकर आ गए। हमें तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो मान गए हैं। मीर ने अपने माँ बाप पर दबाव डलवा कर शादी की तारीख भी जल्दी रखवा दी, वरना वो तो बस मंगनी करना चाह रहे थे। खुदा खुदा करके शादी के दिन करीब पहुँचे और आज हमारी मेहंदी थी। मगर अम्मा ने ये मेहंदी में मुझसे नया तमाशा करवाया था कि मैं अपने शौहर के साथ अलग बैठकर खाना खाऊं। जाने इसमें क्या राज पोशीदा था जो अम्मा मुझे बताने से गुरेज़ा थी। मैं यही बात पूछने अम्मा के कमरे की तरफ गई तो अंदर से अम्मा और अब्बा की बहस की आवाज़ आ रही थी। अब्बा भी मेरे वाला सवाल कर रहे थे कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। जवाबन अम्मा ने शायद किसी का नाम लेकर कहा था कि उसने ऐसा करने को कहा था। जाने अम्मा ने किसका नाम लिया था, मुझे ठीक तरह से समझ ना आ सका। उसी वक्त मेरे हाथ में मौजूद मोबाइल पर वाइब्रेशन हुई तो मैं अम्मा से बाद में पूछने का इरादा करते हुए अपने कमरे में आ गई, क्योंकि मीर का फ़ोन था। हम दोनों सुबह के लिए बहुत पुरजोश थे, क्योंकि सुबह का दिन हमारे लिए बहुत अहम होने वाला था। मैं मीर से बात करते करते सो गई। मैंने ख्वाब में देखा कि कोई मुझसे मीर को छीन कर ले जा रहा है। मैं उसे रोकना चाहती हूँ, मगर मीर मेरे आंसुओं की फिक्र किए बगैर जाने किसके हाथ पकड़कर चला जाता है। मैं रोती रह जाती हूँ और वो चला जाता है। सुबह मैं जब उठी तो बहुत परेशान थी। रात के ख्वाब ने मुझे बहुत डरा दिया था। मेरी आज बारात थी, इसलिए मैंने इस ख्वाब को दिलो दिमाग से निकाल दिया। मैं तैयार होने लगी। मेरी माँ ने मुझे घर पर ही तैयार करवा दिया। सब कुछ ठीक जा रहा था। मैं खुश थी। मेरी बारात भी आ गई थी। जाने क्यों मेरा दिल सुबह से ही बेचैन था। बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हो जाएगा, और मेरा डर ठीक साबित हुआ। अभी मेरी रुखसती नहीं हुई थी और सब खाना वगैरह खा रहे थे कि अचानक मीर के चचा की तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें अस्पताल ले गए। मेरी अम्मी समेत हम सब परेशान हो गए। दूल्हे यानी मेरे शौहर के घर वाले और ख़ानदान वाले तरह तरह की बातें करने लगे और मुझे कहने लगे कि अभी तो दुल्हन घर आई नहीं और ये सब हो गया, पता नहीं आएगी तो क्या होगा। मीर और मैं हक्का बक्का रह गए। शुक्र है कल रात ही निकाह हो गया था, वरना वो सब अभी बारात वापस ले जाते। मीर के ख़ानदान वाले उससे कहने लगे कि वो अभी मुझे तलाक दे। मेरी तो जान निकल गई, मगर शुक्र है मेरे शौहर ने मुझे तलाक नहीं दी, बल्कि सबके सामने कहा चचा को कुछ नहीं होगा और मैं अभी अपनी बीवी की रुखसती करवाऊंगा। रुखसती से पहले अम्मा मुझे खींचकर एक कमरे में ले गई और एक तावीज़ मेरी कमर पर बांध दिया। मुझे कहा इस तावीज़ को कभी मत उतारना, वरना तुझे तेरा शौहर तलाक दे देगा। वो अपने घर वालों की बातों में आ जाएगा और तुझे छोड़ देगा।
مجھے ان کی تعویذ کنڈوں پر بالکل اعتماد نہیں تھا، مگر اماں کی باتیں سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے چپ چاپ اس تعویذ کو اپنی کمر پر باندھوا لیا۔ اپنے شوہر کے لیے میں اتنا تو کر سکتی تھی۔ اماں نے مجھے رخصت کرتے ہوئے خاص طور پر کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس تعویذ کو ہرگز کمر سے مت اتارنا۔ میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ مجھے اس تعویذ کی وجہ سے بہت الجھن ہو رہی تھی، مگر اماں کی وجہ سے میں برداشت کرتی رہی، کیونکہ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ کل میری مہندی کی رات وہ بڑی دور سے جا کر یہ تعویذ کروا کر لائی ہیں، تاکہ کہیں میرا شوہر اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ نہ دے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ اس نے مجھے منہ دکھائی کی انگوٹھی دینے کے لیے جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑا تو چونک گیا اور کہنے لگا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ اس نے جلدی سے دراز سے تھرمامیٹر نکالا اور میرا بخار چیک کیا تو ہم دونوں چونک گئے، کیونکہ مجھے 102 بخار ہو رہا تھا۔ یہ بڑی حیرانی والی بات تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اچانک بخار پتہ نہیں کیسے ہو گیا تھا۔ خیر میں نے دوائی کھائی اور ہم سو گئے۔ صبح میں اٹھی تو بخار کم ہو چکا تھا۔ آج ہمارا ولیمہ تھا۔ میں اپنے شوہر سے بہت شرمندہ تھی کہ کل میں دوائی کھا کر سو گئی تھی، مگر میرے شوہر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہیں بخار تھا نا۔ میرے دل میں ایک دم یہ خیال آیا کہ میں نے تعویذ پہنا ہوا تھا، کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہوا بخار، مگر میں نے اس سوچ کو دماغ سے جھٹک دیا اور سوچا کہ شادی کی تھکن کی وجہ سے ہو گیا ہوگا۔ ولیمے کا سارا دن بھی مصروفیت اور تھکا دینے والا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ آج بھی جب میرا شوہر میرے قریب آنے لگا تو مجھے 102 بخار ہو گیا۔ وہ بیچارہ کہنے لگا، چلو اٹھو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، مگر میں نے منع کر دیا کہ گھر والے کیا سوچیں گے۔ میں نے کل کی طرح کھانا کھا کر دوائی لے لی اور سو گئی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دن چڑھتے ہی میرا بخار پھر سے اتر گیا۔ جانے کیسا بخار تھا جو رات ہوتے ہی ہو جاتا۔ میں نے آج سارا دن کچھ نہ کیا اور صرف آرام کرتی رہی تاکہ اپنے شوہر کے سامنے رات کو اچھی لگ سکوں۔ میرا شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلا تو میں نے سوچا کہ اس کے آنے سے پہلے اچھے سے تیار ہو جاتی ہوں، مگر میرا سر بھاری ہونے لگا۔ جب تک میرا شوہر کمرے میں آیا میری طبیعت پھر سے خراب ہو چکی تھی، پھر سے 102 بخار ہو گیا تھا۔ میرا شوہر مجھے زبردستی کمرے سے باہر لایا کہ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ ہم کمرے سے باہر آئے تو میری ساس ہم دونوں کو دیکھ کر چونک گئی، پوچھنے لگی، تم دونوں باہر کیا کرنے آئے ہو؟ جب ہم نے بتایا کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو وہ ہمیں کہنے لگی کہ میں قہوہ بنا کر دے دیتی ہوں، وہ پی لینا، آرام آ جائے گا۔ میری ساس اتنی اچھی کب سے ہو گئیں؟ میں اسے مشکوک نظروں سے گھورتی ہوئی کمرے میں چلی آئی۔ اصل میں میرا شوہر جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا۔ اوپر والے پورشن پر اس کے چچا رہتے تھے اور نیچے والے پورشن میں میرے شوہر اور سسرال والے۔ بھرا پورا گھر تھا، اس لیے میں نے بھی اس وقت جانا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ قہوہ پی لیا جو میری ساس بنا کر لائی تھی۔ ہم دونوں سو گئے۔ رات کے کسی پہر جانے مجھے ایسے کیوں لگا جیسے کوئی ہمارے کمرے میں آیا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ گئی۔ ایک سایہ سا واقعی کھڑکی کے راستے باہر بھاگا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو جلدی سے اٹھایا اور کہا کہ کمرے سے ابھی کوئی بھاگا ہے۔ وہ بیچارہ نیند سے اٹھا اور باہر دیکھا، مگر کوئی بھی باہر نہیں تھا۔ مجھے کہنے لگا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، باہر کوئی نہیں ہے، تمہیں بخار ہے اس لیے تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ میرا یہ وہم ہرگز نہیں تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جب سے میں نے یہ تعویذ پہنا تھا میرے ساتھ عجیب عجیب معاملات ہو رہے تھے، ورنہ آج سے پہلے مجھے کبھی بخار نہیں ہوا تھا۔ میں اگلے دن اپنے گھر گئی تو اماں کو کہا، اماں میں اس تعویذ کو اتار دوں گی، مگر اماں نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ خبردار ایسا کیا، اس تعویذ کے دم سے ہی اب تک تیری شادی ٹکی ہوئی ہے، ورنہ بارات والے دن تجھے طلاق ہو جاتی۔ میں یہ سب ماننے کو تیار نہیں تھی کہ صرف تعویذ کی وجہ سے ایسا ہے۔ اماں کہنے لگی، تمہیں یاد ہے کہ تمہارے شوہر کے گھر والے نہیں مان رہے تھے، پھر میں نے اسے پھکی دی تھی کہ اپنے گھر والوں کو کھانے میں ملا کر دینا، تو اس کے گھر والے کتنی جلدی مان گئے تھے۔ میں نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ اماں کہنے لگی، میں اسی پیرنی کے پاس ہی تو گئی تھی، تب بھی جس سے اب یہ تعویذ لے کر آئی تھی۔ پیرنی نے گارنٹی دی ہے کہ جب تک یہ تعویذ تمہاری کمر پر بندھا رہے گا تمہارا گھر بچا رہے گا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کسی طرح اس تعویذ سے جان چھڑوا لوں، اب لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو پائے گا، کیونکہ میں اندر سے بہت ڈر چکی تھی۔ جو بات مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہر رات مجھے بخار کیوں ہو جاتا ہے، وہ بھی 102 بخار۔ سارا دن میں ٹھیک رہتی تھی، لیکن رات ہوتے ہی بخار چڑھ جانا عجیب بات تھی۔ میں اماں کے گھر سے پریشان ہی واپس آئی۔ رات کو جیسے ہی شوہر پھر سے میرے قریب آنے لگا، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، مجھے بخار ہونے لگا تھا۔ اب اس صورتحال سے میں بھی پریشان ہونے لگی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید 2-4 دن میں طبیعت خراب رہے گی اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر روز یہی تماشا ہونے لگا۔ سارا دن میں حشاش بشاش رہتی اور ٹھیک رہتی تھی، مگر جیسے ہی رات ہوتی اور میرا شوہر میرے قریب آنے لگتا مجھے 102 بخار ہو جاتا۔
इस बेचारे को मेरी परेशानी लग जाती, मुझे दवा खिलाता और चाय पिलाता और सो जाता। मेरे शौहर ने मेरे ससुराल वालों को भिनक भी नहीं पड़ने दी थी कि मेरी तबीयत रोज़ ख़राब हो जाती है। मैं अपने शौहर का जितना एहसान मानती उतना कम था। मेरी शादी को हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन अभी तक मैं और मेरा शौहर एक दूसरे के करीब नहीं आ सके थे और इसमें सारा कसूर मेरा था। जाने क्यों मुझे बुखार हो जाता था। एक दिन सास ने मुझे कहा कि तुम लोगों की तुम्हारे शौहर के चचा ने दावत की है, आज रात का खाना तुम लोग इधर ही खाना। मुझे अपने शौहर के चचा और उसके कज़न बहुत बुरे लगते थे, इसलिए मेरा जाने को दिल नहीं था, मगर मजबूरी थी, क्या करती, शौहर के साथ जाना पड़ा। इन लोगों ने मेरी तवक्को के बरक्स बहुत अच्छा खाना बनाया था और बहुत खातर तवाज़ो की। मेरे शौहर की कज़न मुझे बहुत प्रोटोकॉल दे रही थी। एक बहुत अच्छी शाम गुजार कर हम दोनों जैसे ही कमरे में आए तो मुझे फिर से बुखार होने लगा। अब की बार तो इतना तेज़ बुखार हो गया कि 102 से भी तजावज़ कर गया। मेरी हालत बिगड़ने लगी। मेरा शौहर मुझे इस हाल में देखकर घबरा गया और मुझे लेकर जल्दी से अस्पताल भागा। एक लेडी डॉक्टर मुझे कमरे में ले गई और चेकअप करने लगी। उसको पता नहीं था और मुझे भी इल्म ना हुआ कि कब उसने वो तावीज़ मेरी कमर से उतार दिया। वो तो जैसे ही उसने तावीज़ उतार के एक जानिब रखा तो मैं चौंक गई। मुझे एकदम याद आया कि अम्मा ने मुझे मना किया था कि ये तावीज़ ना उतरे, और अब डॉक्टर ने चाहे गलती से ही सही मगर उतार तो दिया था। तावीज़ के उतरती ही अचानक मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया है। मुझे अपने अंदर सर्दी सी महसूस होने लगी। डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा तो वो भी चौंक गई। कहने लगी, तुम्हारा तो बुखार उतर रहा है। मैं और मेरा शौहर भी हैरान परेशान हो गए थे कि ये क्या हुआ है अचानक से, मगर मैं समझ गई थी कि ये क्यों हो रहा है। ये सब तावीज़ उतारने की वजह से हुआ था। मैं डर गई कि तावीज़ उतर गया है, अब मेरा शौहर कहीं मुझे तलाक न दे दे, मगर उसने तो मुझे कुछ भी न कहा था। इसका मतलब था कि मेरी माँ ने मुझसे झूठ बोला था। मेरे शौहर ने तावीज़ को हैरत से देखते हुए कहा, तुमने ये तावीज़ क्यों पहना हुआ था? मैंने बात बनाते हुए कहा, बस वैसे ही, चलो घर चलें, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। जब हम घर गए तो मेरी सास हमारा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? मेरे शौहर ने कहा, बस वैसे ही नींद नहीं आ रही थी तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। उसने मुझे भी चुप रहने का इशारा किया कि मैं कुछ न बोलूं। कमरे में आकर कहने लगा, अम्मा को इस तावीज़ के बारे में बिल्कुल न बताना, क्योंकि अम्मा सख्त खिलाफ है इन चीज़ों के और एतबार बिल्कुल नहीं है उनको। अब मैं उसे क्या बताती कि मेरी माँ को पीरों फ़कीरों और तावीज़ों पर कितना एतमाद है। मुझे लग रहा था कि अब मेरी तबीयत ठीक है, मगर मेरे शौहर ने जब बताया कि उसको बुखार होने लगा है तो मैं घबरा गई कि ये क्या चक्कर है। तावीज़ के उतरते ही मैं बिल्कुल ठीक और मेरा शौहर बीमार हो गया है। खैर, उसे मैंने दवाई वगैरह खिलाई और सुबह होते ही मैं अपनी माँ की तरफ गई और मैंने उसे जाकर सारी बात बताई। अगर मेरी अम्मा इस शादी के खिलाफ होती तो मुझे लगता कि शायद उन्होंने इसलिए मुझे तावीज़ दिया था ताकि मैं अपने शौहर के करीब ना जा सकूं, मगर मैं अम्मा पर शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हीं ने तो अब्बा को मेरी और मीर की शादी के लिए राज़ी किया था। फिर जाने ये सब क्या हो रहा था। अम्मा को मैंने जाकर नहीं बताया था कि मैंने तावीज़ उतार दिया है, बल्कि मैंने कहा कि अम्मा, जिस पीरनी से तुमने मेरे लिए तावीज़ लिया, मुझे उसका एड्रेस दो। मैं असल में उससे खुद जाकर पूछना चाहती थी कि उसने किस किस्म का तावीज़ दिया था कि पहले मुझे बुखार होता रहा और अब मेरे शौहर को। मैं अम्मा से पता लेकर उस पीरनी की तरफ जा रही थी कि रास्ते में ही मेरे शौहर की कॉल आ गई। कहने लगा, जल्दी घर आओ। मैंने वहीं से गाड़ी मोड़ी और जल्दी से घर पहुंची तो अपने कमरे में जाते ही मैं दंग रह गई, क्योंकि बेड पर मेरे और मेरे शौहर के सारे कपड़े बिखरे पड़े थे। लेकिन दंग रह जाने वाली बात यह थी कि हम दोनों के सारे कपड़े फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। मैंने कहा, ये किसने किया? कहने लगा, मुझे भी नहीं पता। मुझे लगा शायद तुम्हें पता हो कि ये क्या हो रहा था। ऐसे भला कौन कर सकता था? शाम को हमें एक दावत पर जाना था और अब सारे कपड़े ख़राब कर दिए गए थे। मुझे शक हो रहा था कि ज़रूर मेरी सास ने ये सब किया है ताकि हम शाम की दावत पर ना जा सकें। मैं बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करें। तभी मेरे शौहर की कज़न हमारे कमरे में आई। वो भी ये सब देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, शाम में तो तुम लोगों को एक दावत में जाना है, ये सब किसने किया? मैं अपने शौहर के सामने उसकी माँ पर शक करती तो उसे बुरा लगता, इसलिए मैं चुप रही, वरना मुझे पक्का यकीन था कि उसी ने कुछ किया है। मेरे शौहर की कज़न विश्मा ने मुझे अपने कपड़े दिए कि शाम में मैं यही पहन लूँ, और मेरे शौहर ने अपने भाई के पहन लिए। दावत अच्छी रही थी, हम दोनों ही ठीक थे बिल्कुल, मगर जब रात हुई तो मेरे शौहर की तबीयत ख़राब होने लगी। उसे बुखार हो गया। अम्मा के तवीज़ का असर मुझसे हटकर मेरे शौहर पर हो गया था। मैं बहुत परेशान थी। अम्मा को जब बताया तो मुझे कहने लगी, तुम एक बार इस फ़कीरनी के पास जाकर नया तवीज़ करवा लो, तुम्हारे शौहर का बुखार उतर जाएगा। मेरे ससुरालों में तवीज़ गंढों पर एतबार नहीं किया जाता था, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी सास से छुप कर जाऊंगी।
मैं अगले दिन अम्मा के बताए हुए एड्रेस पर चली गई और उसको सारी सूरत-ए-हाल बताकर तवीज़ ले आई। घर आकर वो तवीज़ घोलकर अपने शौहर को पिला दिया, मगर रात को उसकी तबीयत फिर से ख़राब थी। यही सब चलते चलते 1 महीना हो गया। अभी तक मैं और मेरा शौहर एक दूसरे के पास नहीं आ सके थे, और फिर मेरी सास मुझसे पोते पोती की फरमाइश भी शुरू कर दी थी। ये ऐसा हसास मसला था जो हम सास को भी नहीं बता सकते थे। अब ऐसा होने लगता कि कभी रात को मुझे बुखार हो जाता तो कभी मेरे शौहर को, लेकिन दिन के वक्त हम दोनों ही बिल्कुल ठीक होते थे। इस दिन मैंने सोचा कि अपने कमरे की खुद तफसीली सफाई करूं। मेरी सास ने मुझे बहुत रोका था कि रहने दो, तुम्हें मुलाजमों के होते हुए काम करने की क्या ज़रूरत, मगर मैं फारिग बैठी थी, इसलिए सोचा कि अपने कमरे को खुद साफ़ करूं। और अच्छा ही हुआ जो मैंने ये काम कर लिया, क्योंकि मुझे कमरे के मुख्तलिफ कोनों खुदरों से तावीज़ मिले थे जो तफसीली सफाई के नतीजे में सामने आए, वरना मैं अनजान ही रहती। ये सब मेरी सास ने ही किया होगा, तभी तो वो मुझे कमरे की सफाई से मना कर रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई। एक तरफ कहती हैं कि हमारे ख़ानदान में इन सब चीज़ों पर एतबार नहीं किया जाता, और दूसरी तरफ वो अपने बेटे पर ये सब करवा रही थी ताकि हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर सकें। मैं उनकी चाल समझ गई थी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि उन तवीज़ों को दिखाकर उनसे पूछूं, मगर मुझे इल्म था कि वो मुकर जाती और उल्टा मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काती। इसलिए भलाई इसी में थी कि मैं चुपचाप रहकर इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करती और फिर अपने शौहर को दिखाती कि ये देखो तुम्हारी माँ क्या करती फिर रही हैं। मैंने अपने लाए और कमरे से निकले गए सारे तवीज़ ही घर से बाहर दफन कर दिए। ये सब करने के बाद कुरानी सूरतें पढ़कर मैंने पूरे कमरे पर दम किया और पानी छिड़का। ये सब करने का फ़ायदा ये हुआ कि रात को मेरा शौहर कमरे में आया तो उसे बुखार ना हुआ और ना मुझे। हम दोनों बिल्कुल ठीक रहे। मुझे मालूम था कि मेरी सास आज नहीं तो कल घर से ज़रूर निकलेगी ताकि फिर से तावीज़ लेने जा सके। मैंने अपनी सास पर नज़र रखनी शुरू कर दी। वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी, मगर एक दिन मैंने उसे बाहर जाते देखा। शायद वो फिर से हम पर तवीज़ करवाने जा रही थी। मैंने उसके पीछे जाने का इरादा किया, मगर जब तक मैं उसके पीछे जाती वो बाहर निकल चुकी थी। मैंने अफसोस से सर हिलाया और अंदर आ गई। रात को फिर से मेरे शौहर को बुखार हो गया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। सुबह मैंने एक बार फिर से अपने कमरे को छान मारा और मैं दंग रह गई जब मुझे फिर से बेड के मैट्रेस के नीचे से काले धागे मिले और एक तवीज़ भी जिस पर आड़ी तिरछी लकीरें बनी हुई थी। मैं घबरा गई कि मेरी सास ने ये सब कब मेरे कमरे में रखा। पिछले 1 हफ्ते से तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि सास मेरे कमरे में ना आए, और ऐसा ही हुआ था। मुझे अच्छे से याद था कि वो मेरे कमरे में नहीं आई थी, तो फिर ये सब कैसे और क्यों हो गया। मैं अभी अपने कमरे में बैठी हैरान हो रही थी कि मेरी माँ चली आई। मेरे हाथ में ये सब देखकर अम्मा परेशान हो गई और पूछने लगी, ये सब क्या है। मैंने परेशान होकर उसे सब बता दिया। अम्मा मुझे कहने लगी, ये सब बहुत ही ख़तरनाक है, तुम मेरे साथ फ़ौरन पीरनी के पास चलो, उसके पास इस मसले का तोड़ लाजमी होगा। मैंने कहा भी, अम्मा छोड़ें इसको, मुझे नहीं जाना उसके पास। लेकिन अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती उठाया और अपने साथ लेकर अपनी पीरनी की तरफ रवाना हो गई। मैंने लाख समझाया, मगर अम्मा का ये पक्का अकीदा था कि वो औरत बहुत ताकतवर अमल करती है। मुझे बदले में अपनी सास पर जादू नहीं करवाना था। मैं तो बस ये चाहती थी कि उसका पर्दा फाश कर दूं ताकि मेरे शौहर को सब पता चल जाए। हम इस औरत के आस्ताने पर जाकर बैठ गए और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। तभी मैंने उसे देखा। उसे देखकर मेरे सर पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। मैं यकीन भी नहीं कर सकती थी कि वो भी यहाँ मौजूद हो सकती है। शायद वो अपने किसी काम से आई थी। उसने चेहरा छुपाया हुआ था, मगर फिर भी मैंने उसे पहचान लिया था। वो अपनी बारी पर अंदर गई और काफ़ी देर लगाकर बाहर आई। मेरी माँ ने भी उसे देख लिया था। वो भी बहुत हैरान हुई थी। मैं घर गई और मौके का इंतज़ार करने लगी। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़कर खुद भी बाहर आ गई। मुझे अपने प्लान पर 100% एतमाद था कि मेरा प्लान ज़रूर कामयाब होगा। कुछ ही देर बाद मुझे अपने कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। ऐसे लगा कि जैसे कोई कमरे में गया है। बस मैं इसी लम्हे का इंतज़ार कर रही थी। सास को बहाने से लेकर जब मैं अपने कमरे में गई कि देखा कि कमरे में तो नाइमा थी, मेरे शौहर की कज़न। मुझे देखकर घबरा गई और उसी बड़बड़ाहट में तवीज़ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़े। मैं तो खुद उसे कल पीरनी के पास देखकर दंग रह गई थी। मुझे पहले लगा था कि शायद वो अपने किसी मसले के लिए तावीज़ लेने आई है, मगर जब मैं अपनी बारी पर अंदर गई और इस पीरनी को इसकी तस्वीर दिखाकर पूछा कि ये लड़की किस काम के लिए आई थी, तो वो बताने लगी कि ये लड़की अपनी कज़न को पसंद करती है और उस कज़न की शादी कहीं और हो गई है। ये उनकी शादी तोड़वाना चाहती है, इसलिए तवीज़ करवा कर ले जाती है। मैं तो सुन होकर रह गई थी कि मैंने तो समझा था कि सारे मामले के पीछे मेरी सास है, मगर निकला कौन? मेरे शौहर की चचाजाद, जिस पर मैं शक कर नहीं सकती थी। मुझे यकीन हो गया कि अब तक मेरे साथ जो भी हुआ उसी ने किया। मेरे और मेरे शौहर के कपड़े भी उसी ने फाड़े होंगे
और कमरे में मुख्तलिफ जगहों पर तावीज़ भी उसी ने छुपाए होंगे। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए सास को लेकर मैं उसके पीछे पीछे ही अपने कमरे में दाखिल हो गई। मेरी सास उसे देखकर शुश्तर रह गई और उसे ज्यादा धचका उसके हाथों से गिरे तावीज़ देकर हुआ था। मेरी सास को समझ आ गई थी कि वो किस मकसद के ज़रिए इस कमरे में आई है। अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसने रोते हुए खुद सब कुछ बताना शुरू कर दिया। कहने लगी, मैं बचपन से मीर को प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती थी, मगर उसने क्या किया, मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर किसी और से शादी कर ली। शादी वाले दिन मेरे बाबा ने मेरे कहने पर ही हार्ट अटैक का नाटक किया था, ताकि सबको लगे कि दुल्हन सबस कदम है और उसे खड़े खड़े तलाक हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने उन पर सख्त जादू करवाना शुरू कर दिया ताकि ये एक दूसरे के करीब न जा सकें। मैं इन दोनों को अलग करना चाहती थी, मीर को हासिल करना चाहती थी, इसीलिए पीरों फकीरों के पास जाने लगी, तावीज़ और धागे करवाना चाहती थी, और ये सब मैंने सिर्फ मीर को पाने के लिए किया। मेरी सास ये सुनकर हक्का बक्का रह गई और उसी वक्त उसे अपने घर से निकाल दिया। बाद में पता नहीं सास ने उसकी माँ से कैसे बात की, मगर एक माह के अंदर अंदर उसकी शादी हो गई और उसका साया हमेशा के लिए हमारे सरों से टल गया। उसके जाते ही हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया और 1 साल बाद हमें औलाद की नेमत से भी नवाज दिया गया। सच है, इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, किसी दूसरे से उसका नसीब नहीं छीन सकता। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।